Hello students. Now I will discuss with the students of 12th class. As you know, we are going to discuss regarding the United Nations. As you are well aware of the fact that originally the United Nations was started by 51 members, and now its membership is 193. We have discussed its organs, 3 organs we have discussed in our earlier chapter. Today I will discuss these 3 remaining organs. As you know that as the individual, as any living organism have its different organs, and unless and until all those organs of an organism will not work properly, will not function properly, it means we cannot say that he is a fit, that is considered to be a physically handicapped or special individual. Means he require a definite care in that regard. As far as this United Nations is concerned, it is in this almost all the nations of the world are participating in this for the betterment, for bringing peace in the world. Means those conflicts which are going on among the states or between the states, that must be resolved on by the peaceful manner, by the process of negotiation, mediation, inquiries whatsoever. The possibilities are there, that is they must dispute, all the dispute must resolve by the interference of the United Nations. So it has different organs. We have discussed its General Assembly, फिर हो गया Security Council and Socio and Economic Councils. We have discussed in our earlier chapter. Now today I will we will learn about another organ, that is International Court of Justice. The 4th organ of the United Nations organs, means 4th International Court of Justice. It can be written like this: ICJ, International Court of Justice. This International Court of Justice is meant for resolving the dispute among the states or between the states. It is known as the judiciary organ of the United Nations. Means to every issue, कोई भी हो, किसी भी countries की बात अगर हम करें, disputes are there, conflicts are there, and due to the interference of the United Nations, those must be dispute. But there must be there is importance of the judiciary in this United Nations, because एक जो है ये ज़रूरी है, बगैर इसके जुडिशरी के whether the laws are implemented or they may be violated or they are legally implemented or illegally. Means there must be an agency which can prove, which can verify, which can inquire according those whether the rules, the norms, the laws which are framed by any agency may those be implemented accordingly. So there are different organs, as there is a court, there is a Security Council, there is General Assembly, there is Social and Economic Councils, there are other councils. Means there are certain agencies too. Means there is a वहाँ पे जो है United Nations Child Emergency Fund is there, World Health Organization is there, there are so many organizations. UNESCO is there.
वहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं which will work for the United Nations, but this there is the importance of the International Court of Justice because it is a judicial organ of the United Nations. It decides the dispute between or among the different states. Suppose there are conflicts or dispute among the states, meaning more than two countries there are dispute all over the world, or there are dispute between the two states, means here states means country, मुमालिक, दो मुमालिक के दरमियान में कहीं झगड़ा है, आइदर दो से ज़्यादा मुमालिक में कहीं झगड़ा है, कहीं टीटी पे झगड़ा है, कहीं वह वेयर एवर जो भी इसका फील्ड हो, मीन्स जहाँ भी कहीं झगड़ा होता है दैट मस्ट बी रिजॉल्व बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. एंड जो वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है देयर आर 15 जजेस, दे आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल. उनको जो है 15 इसमें जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इट विल रिजॉल्व द dispute among the states. Then there are 15 judges. There are 15 judges in International Court of Justice. Those judges are elected by General Assembly and Security Council. They are appointed. These judges are appointed by the General Assembly and Security Council. ये जो जजेस का इंतखाब होता है इनको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल करती है. इनको जो है वोटिंग होती है बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग टेक्स प्लेस इन जनरल असेंबली एंड इन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. वंस दे आर नॉमिनेटेड एंड देन accordingly the voting process starts in general assembly as well as in the security council, and those members who can get a majority vote both in the general assembly as well as in the security council may be elected as a judge. वो जो है दोनों इलेक्शन का प्रोसेस होता है both in जैसे जनरल असेंबली में all the members 193 are members in that general assembly, means वहाँ पे नंबर ज़्यादा होता है. every country send 5 members to attend assembly, but only one vote is considered for one nation, one country. So all the members of the United Nations, that means 193 members can take part in the election process, and there are 10 members, 5 permanent and 10 non-permanent members in the security council. They can also take part in the voting system for election of the judges. So those candidates, those who can get majority in both of these organs, means both in this general assembly as well as in the state council, they may be elected as judges. And the judges are elected for the period of 9 years. जजेस को अपॉइंट किया जाता है 9 साल के बाद, एंड आफ्टर द 3 years 1/3 ऑफ द टोटल जजेस आर रिटायर्ड. और हर 3 साल के बाद मीन्स 1/3, इट मीन्स आउट ऑफ 15 5 जजेस आर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 3 year. हर 3 साल के बाद जो है 1/3 जो जजेस हैं उनको वो रिटायर हो जाते हैं. एंड वो जजेस जो हैं they can be re-elected if General Assembly and Security Council is willing to re-elect those judges. They are eligible, means there is a provision that those judges which are retired from the International Court of Justice, there is a provision in the Charter of the United Nations that they will be re-elected as a judge for the period of 9 years. दोबारा से उनको किया जाता है जजेस अपॉइंट, तो फिर जो है दे कैन बी री-इलेक्टेड. और वो जो है इट्स
मीटिंग इनकी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, द मीटिंग हेल्ड एट द हेग, जो नेदरलैंड की एक जगह है जिसका नाम हेग है, मीटिंग्स इसकी वहाँ पे होती हैं। डिसीजन आर टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट, मीन्स वो जो वहाँ पे जजेस जितने प्रेजेंट्स होंगे मीटिंग में, तो वो जो है वो लिस्ट सुनते हैं। सुनने के बाद वो जितने जज उसमें ज़्यादा वोट दें तो उस समय उसी में डिसाइड हो जाता है। फिर देन जजेस जितने भी प्रेजेंट होंगे उनमें मेजॉरिटी जजेस, सपोज आउट ऑफ 15 मिनिमम जजेस 9 होने चाहिए, तो मीन्स अगर उनमें कम भी हो तो वो तभी फैसला हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जजेस उसमें हिस्सा लेना चाहिए। द कोर्ट elects its president and vice president for the period of 3 years. फिर then कोर्ट के अंदर जिन जजेस का इंतखाब हो जाता है, then they will elect, they will decide with who will be the president and vice president, and they are elected for the period of 3 years. Except judicial vocations, the court can permanently work permanently in the session. पूरा छुट्टियों के अलावा भी ये जो है वो काम करता है कोर्ट। ए कोरम ऑफ 9 जजेस इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द कोर्ट, मींस मिनिमम जो जजेस हैं 9 जजेस जो है, इसका कोरम जो है 9 जजेस, इसके कम से कम मिनिमम जो है, कभी भी अगर कहीं मीट हो, कहीं भी इनका हेल्ड होगा कहीं मीटिंग, तो मींस 9 जजेस इसका कोरम कम से कम होता है। और फ्रेंच एंड इंग्लिश आर दी लैंग्वेजेस ऑफ the International Court of Justice. Only 2 languages are used in International Court of Justice, that is French and English. सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस का वहाँ पे इस्तेमाल होता है, इनका यूज होता है, तो सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश है। Then comes trusteeship. The 5th organ is trusteeship. Trusteeship Council. Trusteeship Council. तो trusteeships by means मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि trusteeships जो है ये लीग ऑफ नेशन ने आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर distractions were there in almost all the countries of the world, and once जो है इत्तबाही के बाद जो क्या हो गया कि कुछ ममालिक में ऐसा सिस्टम हो गया कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार दे वर नॉट एबल टू हैंडल देयर कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स कहीं हुकूमतें चले गई, बहुत नुकसान हो गया, और कुछ कंट्रीज़ के पास इतना जो था, दिस इज टॉक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन द लीग ऑफ नेशंस ऑफ फॉर्मेड, आज जो है वो यूनाइटेड नेशन है, बट आफ्टर द फर्स्ट वार बिकॉज लीग ऑफ नेशन वाज कंसिडर्ड एज द चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार. So after the first world war, what happens when due to the various destruction caused by the first world war, so there were so many countries, there were so many developing countries which were unable to run their governments. वो अपनी हुकूमत को चला नहीं चल सकते थे, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन, जिस लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था कि वो जो है लीग ऑफ नेशन को बनाया जाए, लीग ऑफ नेशन को कि वो सुधार लाए उन कंट्रीज में जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है. तो एक ट्रस्टीशिप उन्होंने बोला कि जो लीग ऑफ नेशंस के मेंबर हैं वो उन्होंने बोल दिया कि वो मैंडेट करेंगे, वो उनकी हुकूमतों को चलाएंगे जो खुद हुकूमतें चला नहीं रही हैं. तो इस सिलसिले में वो कंट्रीज जो नहीं चले वो लीग ऑफ नेशन, फिर जैसे अभी लीग ऑफ नेशन का चल ही रहा था तो दूसरा वर्ल्ड वार हो गया, और दूसरे वर्ल्ड वार में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसके बाद एस्टेब्लिश्ड हो गया दूसरे वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन. और यूनाइटेड नेशन में भी बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जो खुद हुकूमत नहीं कर सकते थे, उनके पास इतने वसाइल्स नहीं थे, वो पूरा कंट्री का वो नहीं चला सकते थे एडमिनिस्ट्रेशन. तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे
उनको ट्रस्टीशिप बनाया और बोला कि आप तब तक हमारी हुकूमत को चलाएंगे तब तक जब तक हम खुद इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो मीन्स वो ट्रस्टी, इसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। मीन्स ये यूनाइटेड नेशन में इसके मेंबर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स, और इसके अलावा इसका जोग्राफियाई हालात मीन्स इसका जो जियोग्राफी है उसके हिसाब से जो नॉन परमानेंट मेंबर जो थे, इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स में भी जो उनके साथ बाउंड्रीज जिन ममालिक की मिलती हैं, जो जनरल असेंबली के मेंबर थे, तो उनको भी बोला गया कि आप मिलजुमला मतलब ड्यू टू म्यूचुअल कॉर्पोरेशन तब तक जो है आपको इन ममालिक की हुकूमत को चलाना है। तो मीन्स इसे ट्रस्टीशिप इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर फ्रॉम द स्टेट विच एडमिनिस्ट्रेशन ट्रस्ट टेरिटोरियल, उनकी जो ज़मीनी हक़ाइक़ या वगैरह जो है, एंड सच दैट 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल as do not administer any trustee territory। मीन्स वो जो है 5 मैंने बोल दिया आपको कि वो जो ममालिक अपनी हुकूमत खुद नहीं चला सकते थे, मीन्स ना उनके पास रिसोर्सेज थे, ना ही उनके ऐसे हालात थे कि वो अपनी हुकूमत को खुद चलाए। तो यूनाइटेड नेशन में जो लीग ऑफ नेशन ने इसको मैनेजेट सिस्टम के ज़रिए से वो जो लीग ऑफ नेशन ने बनाया था, इसी को चूँकि अभी लीग ऑफ नेशन टूटी और उसके बदले में आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड जो है यूनाइटेड नेशन बनी, और यूनाइटेड नेशन में भी ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई। और अभी तक जो है सिर्फ आउट ऑफ द 6 ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन दिस ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज अचीव्ड हिज टारगेट। मीन्स वो जो थी लास्ट वाला जो वो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थी 1994 में ये ख़त्म हो गई, जबकि एक मुल्क लास्ट मतलब वो ट्रस्टीशिप 1994 में जो है ये ख़त्म हो गई, जबकि वो जो यूनाइटेड नेशन ने ये लास्ट का ममालिक था जिस पे ट्रस्टीशिप जो है वो थी। लेकिन 1994 में यूनाइटेड नेशन ने ये टारगेट अचीव कर लिया है कि अब कोई भी कंट्री, देयर इज नो कंट्री इन द यूनाइटेड नेशन और ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ वी कैन सी दैट एनी कंट्री विच इज नॉट एबल टू रन हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, मीन्स कोई ऐसा ममालिक हमारे यूनाइटेड नेशन में अब नहीं है जो मतलब इस एहल नहीं रहा है कि वो अपनी हुकूमत, अपने ममालिक की हुकूमत खुद नहीं चला सके। मीन्स रिसोर्सेज उनके पास हैं, उनके पास जो भी है एवरीथिंग इज अवेलेबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ देयर सिटीजन्स। सो इस यूनाइटेड नेशन में पहला ट्रस्टीशिप काउंसिल है जिसने अपना वो जो टारगेट अचीव कर लिया है। तो फिर जो है इसमें हमारे परमानेंट मेंबर जो 5 होते थे वो, और उसके साथ जो इनकी जोग्राफियाई मतलब जो लैंड की इसमें जो है जो इसके साथ बाउंड्रीज इनकी मिलती थी, वो नॉन परमानेंट मेंबर्स भी कहीं उनका साथ देके तो उनका चलाते थे। मीन्स दिस वाज रिगार्डिंग द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है इन 1994 जो लास्ट ट्रस्टीशिप जो है वो कंप्लीट हो गई थी, मीन्स इसने अचीव कर दिया था। देन कम सेक्रेटेरिएट, द 6th ऑर्गन इज सेक्रेटेरिएट। जैसे यूनाइटेड नेशन का 6th ऑर्गन जो है वो दैट इज सेक्रेटेरिएट जो है इट इज ए 6th ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटेरिएट मीन्स जिस तरह से इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जहाँ तक आप देखते हैं कि हमारी भी सेक्रेटेरिएट है, हमारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो निचली सतह पे हैं, ऊपरली हायर है, मिडल है, सेकेंडरी है, या जितने भी ऑफिस जो है इसमें रन करते हैं, तो वो सारे एक ही सेक्रेटरी इसका होता है, एजुकेशन सेक्रेटरी, उसके अंडर ये सारे आते हैं। तो मीन्स यूनाइटेड नेशन के जितने भी ये ऑर्गन थे
तो इसको चलाने के लिए, इनको कोऑर्डिनेशन के लिए, इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, इसको रन करने के लिए, मींस देयर वर 6 organs, out of 6 one this is called as secretariat, which was considered as the highest, on the top of this United Nations, who can administer, who can control all the organs of the United Nations. तो ये सेक्रेटरीट है जो इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरी, और इसके लिए जो है वो सेक्रेटरी जनरल होता है इसका हेड, और सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट. एंड ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी इसको बोला जाता है. सेक्रेटरी जनरल जो है, सेक्रेटरी जनरल जो है इसका हेड होता है, और इसको चीफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. द सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट द हेडक्वार्टर. इसका हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ये जो न्यूयॉर्क में है, और ये इसकी ब्रांचेस भी हैं, जिनेवा में है, विनिया में है, नैरोबिया में इनकी ब्रांचेस हैं, और ये इनकी ब्रांचेस हैं. और चीफ, इसको जो इलेक्ट कौन करते हैं, इसको चीफ एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, जनरल इसको सेक्रेटरी जनरल को, और इसको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सिक्योरिटी काउंसिल इसको रिकमेंड करती है. और इसका सेक्रेटरी जनरल वो आदमी बन सकता है जो उस कंट्री से बिलोंग करना चाहिए, जिसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, और तभी, अदरवाइज इसका तो फिर जो है वो इन्फ्लुएंस या अपना इंटरफियर से जो है डिस्प्यूट वाली कंट्री का नहीं होना चाहिए. तो मीन्स दिस वाज ऑल अबाउट the organs of, by this we have completed the organs of the United Nation. तो आप समझ